studied about the types of non-trivial relation in the form of identity relation and reflexive relation. Continuing with the type of relation, let me introduce another type of relation, which is your symmetric relation. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर एक रिकैप्चुलेशन करूं तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में स्टडी किया है और साथ साथ थॉरो प्रैक्टिस भी की है और डिस्कशंस के साथ अभी तक फ़िलहाल. So continuing with the other type of relation, which is the symmetric relation, and this is a non-trivial type of relation. Let me define this symmetric relation. The relation are defined on a non-empty set A is said to be symmetric relation over A if and only if when अगर ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B रिलेशन का पार्ट है, so this implies B comma A should also be part of the relation. ऑर्डर्ड पेयर A comma B फॉर्म में अगर मौजूद है तो B comma A ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए. What are A and B? So A and B are any two elements of belonging to the set A. नोटेशन के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं, इसकी कंडीशन को, so element A related to element B by relation R, in relation R, element B should also be related to element A and present in the relation R for all elements A and B belonging to the set A. ये आपकी डेफिनेशन है. कंडीशन आपको इसलिए बताई जा रही है, कंडीशन या डेफिनेशन बताने के पीछे रीज़न ये है कि 1 मार्क क्वेश्चंस में इस बार बोर्ड में 1 मार्क क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन आई थी. सिमेट्रिक रिलेशन को ही लेके 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है आज इस साल. तो इसीलिए आपको डेफिनेशंस बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व करना ही ना जाने, कंडीशंस भी आपके जहन में होनी चाहिए. चाहे आप यूनिवर्सल रिलेशन उठा लें, चाहे आइडेंटिटी रिलेशन उठा लें, चाहे रिफ्लेक्सिव रिलेशन उठा लें, और राइट नाउ सिमेट्रिक रिलेशन. You should know about the conditions and you should know about definition, because this can be asked in the form of 1 mark question in your board exam. 1 mark के 20 questions will be asked, so any condition related to your definitions can be asked. You should be continuing further on. If I have to analyze whether a given relation is symmetric or not, what we do? So we consider, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में we used to consider one element at a time, symmetric relation में we consider 2 elements at a time. Two elements at a time in set A, and then अब जैसे यहाँ 2 एलिमेंट्स कौन कौन से A and B या 2 एलिमेंट्स, अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है.
A इक्वल्स टू बी भी हो सकता है एंड A एंड B डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. A इक्वल्स टू बी हुआ तो एक ही एलिमेंट हो गया, तो ये A कॉमा A फॉर्म होगा. A कॉमा A या B कॉमा B फॉर्म, तो B कॉमा B तो ऑलरेडी फ्लाई करेगा, तो A इक्वल्स टू B में भी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं. और व्हेन A एंड B आर अनइक्वल, ये अनइक्वल के लिए बेसिकली बात यहाँ हो रही है. देन वी चेक फॉर द गिवन कंडीशन कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं या नहीं. मतलब सिमेट्रिक रिलेशन के इज डिफाइंड फॉर, I can say, two elements of the non-empty set. Reflexive relation is defined or is checked for one element in the non-empty set at a time, and your symmetric relation is analyzed or checked for, आप check करते हैं two elements at a time in the given relation. Yes, and you check for this condition. Are you getting? So if I want to continue further with the example, like let L be the set of all straight lines lying in a plane and R be a relation defined on line L as L1 comma L2 such that line L1 is perpendicular to line L2 for all lines L1 and L2. So basically what we are discussing here, the relation is based on the perpendicularity of lines. The perpendicularity of lines. ठीक. In reflexivity we have already discussed this example, so you remember previously only, this is a previous discussed example. So what about reflexivity? Just recall, the perpendicularity of lines is non-reflexive. Was non-reflexive na, because a particular line cannot be perpendicular to itself. So we already know, we have already done this question while discussing reflexivity. So we know that the relation R is not reflexive on L. Let's discuss whether the given relation is symmetric or not. So to discuss the symmetricity, or I can say whether the relation is symmetric or not, what we are going to consider. तो सबसे पहले ये सेट कैसा सेट है? L इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि प्लेन में आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट. इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ये रिलेशन गिवन है. Isn't it? Set builder form it is given. So what we are going to consider at a time from this set L, we are going to consider two elements at a time. तो एक कोई भी एलिमेंट यहाँ क्या है? लाइन है. So we are considering two lines L1 comma L2 belonging to the set L such that L1 comma L2 ordered pairs lies in the relation R. This implies if L1 comma L2 lies in relation R, then what does it mean? That line L1 is perpendicular to line L2. Let me draw it also. L1 perpendicular to L2. Now guys, if L1 is perpendicular to L2, so this also implies line L2 is also perpendicular to line L1. If L1 is perpendicular to line L2, then L2 is also perpendicular to line L1. है कि नहीं? So this implies what? L2 comma L1 also belongs to R. So if L1 for ordered pair L1 comma L2, L2 comma L1 also part of the relation R. So this implies what? Relation R is symmetric on L. Isn't it?
Let me keep that the same set L, set of all straight lines in a plane. Let R be a relation defined as R equals to L1, L2 ordered pair such that line L1 parallel to line L2 for all lines L1 and L2 belonging to the set L. Guys, this previous question was for perpendicularity, so this is a relation of parallelism between lines, isn't it? We have already checked the reflexivity or the reflexive nature of this relation. क्या आया था? कोई भी लाइन, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए we used to consider one element or one line at a time. So any line will always be parallel to itself. So we already remember that relation R is reflexive. This we have already done in previous discussions or example. Yes? Now let us check the symmetric nature of the relation R or the symmetricity of relation R. Again, you can see this is an infinite set. And that's why in set builder form the entire relation is presented. So what we are going to consider again, we are going to consider two lines L1 and L2 belonging to the relation set L such that ordered pair L1, L2 belongs to relation R. So इसका मतलब क्या है? That means line L1 is parallel to line L2. If line L1 is parallel to line L2, this also implies line L2 is also parallel to line L1. Line L1. You can see for yourself L1 parallel to L2. If L1 is parallel to L2, then L2 is also parallel to L1. एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. So this implies what? That ordered pair L1, L2, L1 is also part of the relation R for all lines L1 and L2 belonging to the set L. So that means relation R is symmetric on this line. This relation R is symmetric. So what can be, if we want to summarize, so we can see, construct it once again. Your perpendicularity is non-reflexive but symmetric, whereas parallelism is both reflexive as well as symmetric. Yes? Moving on to other practice problem which we have already discussed for reflexive relation, for reflexivity, which says let X be a non-empty set and R be a relation defined on P of X. This question we have already done, if you remember, but we have done it to check reflexivity. अब हम symmetric के example में इसको देखते हैं. So what is P of X? P of X is the power set of the set X, and the relation R is defined as
relation R is equals to ordered pair A comma B such that set A is subset of set B for all sets A and B belonging to the power set of X. If you remember, every set, let us check for reflexivity. So if you remember, this relation R, we have already discussed this question for reflexivity, and we knew that this relation R is reflexive on P of X. है कि नहीं? क्योंकि कोई भी एक सेट खुद का सबसेट होता है. Now let us check for symmetric. Again, if you look at the set X, it is any non-empty set, isn't it? And the entire information is given in set builder form. तो हमको भी अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करना होगा? तो वी हैव टू कंसिडर any two elements, at least two elements from the power set of X. So let elements here represent set. So let A comma B belongs to P of X such that A comma B belongs to the relation R, which implies A is subset of B. A is subset of B. If I recall, that means set A is contained in set B. A is contained or part of set B. But does it implies always that B is also part of set A? So that doesn't mean. Why? Why? Because set B is superset of set A. And B subset of A is possible when? Just remember, B subset of A is possible if and only if both set A and B are equal. Set A equals to set B. तो यहाँ हम लोग ये जो दो सेट्स ले रहे हैं, ऑब्वियसली हम दो नॉन इक्वल सेट्स ले रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट सेट्स ले रहे हैं, दो डिफरेंट सेट्स ले रहे हैं. तो अगर दो डिफरेंट सेट्स ले रहे हैं और A B का सबसेट है, so there is no logic to say that B is also subset of A. So that means what? B comma A is not part of, or is not necessarily part of the relation R for all sets A and B belonging to R. तो हम क्या कहेंगे? That relation R is not symmetric on P of X. That's how our presentation of the answer should be and must be in. Let us take up illustration 4. Given on page 1.4 of your R.D. Sharma. Here, a relation R1 is defined over set A as A containing elements as 1, 2, 3, 4. So relation R1 defined on A as R1 given as 1, 3 ordered pair, 1, 4, 3, 1, 2, 2 and 4, 1 ordered pair. Now, for this particular case, let us check the reflexivity, or if I put forth the question that whether relation R1 is reflexive on A or not. Let us check it out. तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमको क्या देखना है? हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए. वी हैव टू कंसिडर वन एलिमेंट एट ए टाइम फ्रॉम द सेट ए, इजंट इट? एंड वी हैव टू चेक द मिनिमम कंडीशन. क्या होती थी मिनिमम कंडीशन? इफ आई वांट टू recall it,
A comma A belonging to R1 for all element A belonging to the set A. Let us check this minimum condition. तो पहला एलिमेंट 1 लिए, क्या 1,1 मौजूद है R1 में? नहीं है। पहला ही ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। तो एक आपको काउंटर एग्जांपल मिल गया। वैसे ही और आप देखना चाहें 2,2 मौजूद है बट 3,3 नहीं है, एंड 4,4 भी वायलेट कर रहा है आपकी कंडीशन को। तो इसका मतलब मिनिमम कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इजंट इट? इस तरह से हम लोग एनालाइज करेंगे। प्रेजेंटेशन कैसे होगा? आप डायरेक्टली काउंटर एग्जांपल दिखा दीजिए कि 1,1 या 3,3 या 4,4 इज नॉट पार्ट ऑफ रिलेशन R1, सो आई विल से दैट R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव on A. Let us check the symmetricity, that is symmetric whether the relation R1 is symmetric on A or not. उसके लिए क्या करेंगे? अब आप देखेंगे पूरा का पूरा आपको जो रिलेशन दिया है वो किस फॉर्म में दिया है? वो रोस्टर फॉर्म में दिया है। डू यू एग्री? और जिस सेट पर डिफाइन किया गया है वो एक फाइनाइट सेट है। ए पर, ए में फाइनाइट एलिमेंट्स है, फाइनाइट सेट है। तो यहाँ हमारे लिए ऑर्डर्ड पेयर, हर ऑर्डर्ड पेयर को एनालाइज करना आसान हो जाता है। तो आ जाइए, मैं अगर पहला ऑर्डर्ड पेयर लूँ 1,3, तो 1,3 के रिस्पेक्ट में क्या 3,1 मौजूद है? लेट अस चेक इट आउट। 1,3 के रिस्पेक्ट में 3,1 मौजूद है। 1,4 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए याद है कितना क्या कंडीशन है? A, B belongs to R implies B, A should also be part of the relation R. Considering this particular condition in mind, we are checking one by one. 1,3 के रिस्पेक्ट में 3,1, 4,1, 1,4 के रिस्पेक्ट में 4,1 is present, and 2,2 के रिस्पेक्ट में अगर हम इनको इंटरचेंज भी करेंगे तो क्या हो रहा है? 2,2 ही, इट इज़ पार्ट ऑफ द रिलेशन R. तो आप ये देख सकते हैं यहाँ हम लोग दो A और B दो नॉन इक्वल एलिमेंट्स ले रहे हैं, जबकि 2,2 में A एंड B क्या हो गया? इक्वल हो गया। यस और नो? सो व्हाट वी आर गोइंग टू कंक्लूड, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स आर satisfying the condition for symmetricity. So I can say R1 is symmetric on A. क्वेश्चन आंसर की प्रेजेंटेशन कैसे होगी? वैसे ही आप लिखोगे 1,3 belongs to R1 implies 3,1 also belongs to R1. 1,4 belongs to R1 implies 4,1 also belongs to R1. 2,2 belongs to R1 implies 2,2 also belongs to R1. So all conditions are satisfied, therefore relation R1 is symmetric on A. अब अगर इसी में मैं एक एग्जाम्पल यही रखते हुए, फिर सेट यही रखते हुए मैं बस एक और रिलेशन लूँ R2, डिफाइन करूँ ए पर, रिलेशन R2 ले रहा हूँ मैं। लेट मी राइट द ऑर्डर्ड पेयर फॉर R2. R2 को भी मैं आपको रोस्टर फॉर्म में ही दे रहा हूँ। 1,1, 2,2, 3,3 and 1,3. Now I want to check. अब मैं आपसे पूछूं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो देख लीजिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सोचिए मेंटली थोड़ा सा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 मौजूद है, 2 के रिस्पेक्ट में 2,2, 3 के रिस्पेक्ट में 3,3, बट एलिमेंट 4 के रिस्पेक्ट में मिनिमम कंडीशन A, सेटिस वायलेट हो रहा है, इजंट इट? तो हम कहेंगे दिस इज नॉट, R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन A. बट सिमेट्रिक के लिए देखें तो सिमेट्रिक के लिए आ जाइए 1,1 A, B, तो इसका B, A 1,1 ही रहेगा, ये मौजूद है। 2,2 इसका भी 2,2, 3,3 इसका भी B, A 3,3, तो दिस आर ऑल प्रेजेंट। बट 1,3
बिलोंग्स टू R2 के रिस्पेक्ट में हमको काउंटर एग्जाम्पल मिल रहा है कि 3,1 इज़ नॉट पार्ट ऑफ R2। तो सोल्यूशन में भी आप यही लिखेंगे, सिंस 1,3 बिलोंग्स टू R2 बट 3,1 does not belongs to R2, so this implies R2 is not symmetric on A। अब इसी में समझ आ रही है बात? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक और मैं केस ले लेता हूँ R3, इसी पे मैं R3 एक और रिलेशन ले रहा हूँ, सेट ए पर डिफाइन करता हूँ। जिसके ऑर्डर पेयर्स हैं 1,1, 2,2, 3,3, 1,3 and 3,1। Now guys, if I want you to check whether R3 is reflexive and symmetric over A or not, over set A or not, let us check it out। तो क्या हो रहा है रिफ्लेक्सिव के लिए जरा देखें। 1,1 A फॉर्म है, 2,2 है, 3,3 है, बट अगेन यहाँ 4,4 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, तो इसका मतलब R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन ए। आप सीधा काउंटर एग्जाम्पल देंगे, और अगर सेटिस्फाई करता होता, मान लीजिए 4,4 भी मौजूद होता, तब आप डेफिनेशन के साथ रिलेट कर देते कि फॉर, अब सीधा लिख देते A बिलोंग्स टू R3 या R4, यस, जिसमें 4,4 भी है। मतलब रोस्टर फॉर्म में आप सब ऑर्डर्ड पेयर्स दिखा दीजिए कि दिस 1,1 बिलोंग्स टू द रिलेशन 2,2 बिलोंग्स टू द रिलेशन 3,3 बिलोंग्स टू द रिलेशन 4,4 बिलोंग्स टू रिलेशन, सो देन यू गिव द कंडीशन, बस। और वहाँ से आप कंक्लूड कर दीजिए कि ये रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ये तो तब होता जब 4,4 पार्ट होता, बट इस केस में 4,4 पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका R3 रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए चेक करें, तो सिमेट्रिक के लिए आ जाइए 1,1, इसको अगर मैं इंटरचेंज करूं तो भी 1,1 इट इज़ पार्ट ऑफ द रिलेशन R3। 2,2 इंटरचेंज करूं A, B से B, A करें तो भी इट इज़ पार्ट ऑफ रिलेशन R3। 3,3 A, B, सो इंटरचेंज करने पे B, 3,3 रहेगा। अब 1,3 अगर मैं इनको इंटरचेंज करूं तो 3,1 इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। तो आपको नज़र आ रहा है कि कंडीशन A, B belongs to R3 implies B, A belongs to R3, that means R3 is symmetric on A, relation R3 is symmetric on A। ये आ गया आपका। अब इसी में एक और क्वेश्चन मैं आपको सोचने के लिए देता हूं। मैं आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करता हूं, और आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए लिखकर अगर मैं आपसे पूछूं यही होगा ना, मिनिमम A, ओनली, तो मिनिमम भी यही और मैक्सिमम भी यही। इस दायरे से ना दायरा घट सकता है, ना इससे ज़्यादा आप जा सकते हैं, इज़ इट? तो अब मैं आपसे पूछूं क्या रिफ्लेक्सिव है, तो वी नो दैट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, every identity relation is reflexive, so obviously it is reflexive on A। Is it symmetric? तो let us check for symmetric। 1,1 belongs to IA, और इसको अगर मैं इंटरचेंज करूं तो भी क्या हो रहा है, तो यहाँ एक A=B कंडीशन में A, B belongs to R implies B, A belongs to R, शायद सेटिस्फाई हो रहा है हर ऑर्डर्ड पेयर से। यू कैन चेक इट आउट। सो आई कैन से योर दिस इज सिमेट्रिक ऑन ए। तो एक यहाँ से हम लोग को सिंपल सी बात आती है कि कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन defined on a non-empty set A
is reflexive as well as symmetric relation होने. Isn't it? सोच लीजिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ. Continuing further, considering one more question. So let R be set of real numbers and let R1 be a relation defined on set of real numbers R as R1 equals to ordered pair x comma y such that x greater than y for all x element and x and y belonging to real number. तो यहाँ इनइक्वलिटी कौन सी है या रिलेशन किस पर बेस्ड है? ग्रेटर देन पर. थोड़ा ध्यान रखिएगा. ग्रेटर देन पर. लेट अस एनालाइज अगेन. क्या R1 रिलेशन सिमेट्रिक है? तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन का भी हमने पहले कर चुके हैं कि R1 is not reflexive on the set of real numbers R. याद है? ये एग्जाम्पल हो चुका है बेटा. ग्रेटर देन क्यों? क्योंकि आप रिफ्लेक्सिविटी के लिए यहाँ देखिए R कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है. इसीलिए वन ऑफ द केसेस कि आपका रिलेशन R1 सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है. तो अगर मैं कोई एलिमेंट A लेता हूँ जो कि रियल नंबर है, क्या कोई रियल नंबर खुद से बड़ा होता है? इज A ग्रेटर देन इटसेल्फ? नो ना. इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. लेट अस चेक द सिमेट्रिसिटी और द सिमेट्रिक नेचर ऑफ दिस रिलेशन कि R1 सिमेट्रिक है कि नहीं. तो सिमेट्रिक के लिए मैं क्या करूँगा? इसी सेट से हम कोई दो रियल नंबर्स, आर्बिट्री रियल नंबर्स A एंड B लेंगे सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R1. A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन R1 मतलब एलिमेंट A इज ग्रेटर देन B. एंड वी नो ग्रेटर देन मीन्स व्हाट? A ग्रेटर देन B मीन्स A इज नाइदर लेस देन और इक्वल्स टू B. ये भी आपको पता है. तो इसका मतलब B greater than A is not possible या B greater than A in this case is false, isn't it? तो since B अगर A B से बड़ा है तो B A से बड़ा नहीं हो सकता. That means B comma A ordered pair will not be part of relation R1 for all the elements, arbitrary elements A and B belonging to the real number. So what can we conclude? That R1 is not symmetric on set of real numbers R. प्रेजेंटेशन भी आपकी ऐसे ही होगी जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ. प्रेजेंटेशन भी आपके एग्ज़ाम में कॉपी में ऐसे ही होगी. अब और देख लेते हैं इनइक्वालिटी में, और देख लेते हैं हम लोग. थोड़ा सा इसमें मैं चेंजेस लाऊं. अब अगर मैं ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू करता और अब आपको पूछता ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए, क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए हम लोगों ने पहले चेक किया है? अब आ गया है आपका केस व्हेन योर रिलेशन इज representing the condition or the slack inequality greater than equals to, greater than or equals to के लिए हमको चेक करना है कि R1 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं.
रिफ्लेक्सिव है? थोड़ा सोच लीजिए मेंटली। अगेन मैं एक एलिमेंट लूँगा ए, और ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, ट्रू होता है कि नहीं होता? यस इट इज़ ट्रू। सो इसका मतलब क्या हो रहा है? R1 इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू द सेट of real numbers R. So R1 is reflexive on set of real numbers R. Similarly, you can check for symmetricity also. Symmetric है कि नहीं? अब सिमेट्रिक के लिए यहाँ आपके पास दो तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। या तो आप ये बताएं, दो तरह से, टू वेज इन विच यू कैन प्रेजेंट योर आंसर। एक तरीका जब आप बताएं कि वायलेट कर रहा है, लॉजिकली ये बताएं कि आपका रिलेशन R1 के ऑर्डर्ड पेयर्स ये वायलेट कर रहे हैं कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब डायरेक्टली डेफिनेशन से रिलेट करके बात करें। दूसरा तरीका है अगर आपके पास कोई काउंटर एग्जाम्पल हो। काउंटर एग्जाम्पल टू शो दैट कि जो आपकी डेफिनेशन है वायलेट हो रही है। जैसे मैं यहाँ काउंटर एग्जाम्पल दूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 1,2 बिलोंग्स टू R1, क्या ट्रू है? चेक करिए इसी रिलेशन R1 के लिए क्या हो जाएगा। 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, ये तो ट्रू हो जाएगा, ये है कि नहीं? बट क्या 2,1 बिलोंग्स टू R1 है? क्योंकि 2,1 के लिए आपको बताना होगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। इज इट ट्रू? नो ने। तो इसका मतलब आपको काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। क्या होगा आपका काउंटर एग्जाम्पल इस केस में कि 1,2 बिलोंग्स टू R1 implies 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। जहाँ आपको काउंटर एग्जाम्पल मिल गया वहाँ आपको डेफिनेशन आप खुद ही बता दिए हो काउंटर एग्जाम्पल में, तो आप सीधा यूज़ कर लें। ठीक है ना? कैसे यूज़ करें? तो नॉन सिमेट्रिक है ये बताने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने लिखा कि सिंस ऑर्डर्ड पेयर 1,2 बिलोंग्स टू R1 implies 2,1 does not belongs to R1. So thus A, B belongs to R1 implies B, A does not belongs to R1 for all elements. So therefore relation R1 is not symmetric on set of real numbers R. इस तरह से आप इन 3 लाइन में आप सिमेट्रिसिटी को चेक भी कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशन को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। कंटिन्यूइंग फर्दर, लेट मी गिव यू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एज होमवर्क। डाउट सेशन में मैं इन क्वेश्चंस को, इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को अगर आपसे नहीं हो पाएगा देन आई विल डिस्कस। पहला, अगेन रिलेशन R3 बी रिलेशन डिफाइंड ऑन set of real numbers R as R3 is equals to ordered pair x comma y such that x equals to y for all elements x and y belonging to real number। ये आपका दूसरा सेम मेरा सेट ऑफ रियल नंबर जिस पे डिफाइन है वही है, R ही है। अब R पे डिफाइन हो रहा है तो R4 एक और रिलेशन ले लीजिए, x comma y such that x less than y for all x comma y belonging to real number। वैसे ही एक और ले लीजिए रिलेशन R1 x comma y such that x less than equals to y
for all x comma y belonging to the relation R. R dash x comma y such that x not greater than equals to y for all x comma y belonging to, you can see ये दोनों कोरिलेट हो रहे हैं. x comma y such that x not greater than y ये दोनों भी कोरिलेट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं. तो ये आपके होमवर्क्स हैं, थोड़ा सा सोचिएगा, थिंक ओवर इट दीज क्वेश्चंस. इसमें सब चीज चेक करिएगा, रिफ्लेक्सिविटी, एंड सिमेट्रिसिटी. ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हैं कि नहीं, सिमेट्रिक हैं कि नहीं. यस. कंटिन्यूइंग फर्दर with the properties of symmetric relation. Let me discuss an important property which gives you an alternative approach or condition to check whether a given function is symmetric or not. तो एक alternative approach आपको मिल रहा है through this property. क्या कहता है property? कि relation R defined on a non-empty set A is symmetric on A if and only if when the given relation and its inverse relation, ये inverse relation भी हमने पढ़ा है, दोनों इक्वल सेट हों, दोनों इक्वल, मतलब किसी रिलेशन और उसके इन्वर्स रिलेशन निकालने में अगर कोई तब्दीली, कोई चेंज ना आए रिलेशन आर में, इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक होगा. इफ़ एंड ओनली इफ व्हेन का मतलब क्या है कि द कन्वर्स ऑफ अबव स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. कि अगर आर इक्वल्स टू कोई रिलेशन आर अपने इन्वर्स के बराबर हो रहा है, देन ऑल्सो वी कैन कंक्लूड. सो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि देयर इज ए डबल इम्प्लीकेशन. If this implies this, then this also implies this. ठीक है. आप ये अपनी बुक में देख सकते हैं, पेज 1.4 R.D. शर्मा में. इसका प्रूफ है जो मैं आपके साथ थोड़ा सा एक तेजी से थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ. तो मुझे R इक्वल्स टू R इनवर्स प्रूफ करना है, और गिवन क्या है कि रिलेशन R इज सिमेट्रिक. रिलेशन R इज सिमेट्रिक, ये मुझे गिवन है. R और R इनवर्स दोनों सेट ही हैं एक तरह से, इजंट इट. और हम लोग ने सेट थ्योरी में पढ़ा है कि दो सेट को इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, सबसे पहले कि R इज सबसेट ऑफ R इनवर्स एंड R इनवर्स इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस रिलेशन R. तो हमको ये शो करना है प्रूफ करने के लिए कि दोनों रिलेशंस इक्वल हैं, R एंड R इनवर्स आर इक्वल. So obviously it is already given that R is symmetric on A. So let's do it. थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको समझा दूं. तो मैं कोई एक जनरल
आर्बिट्री ऑर्डर्ड पेयर लेता हूँ a कॉमा बी बिलोंगिंग टू रिलेशन R। अगर a कॉमा बी बिलोंगिंग टू रिलेशन R है, देन वी नो b कॉमा a विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द रिलेशन R। वाई? क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि R इज सिमेट्रिक ऑन ए। अगर b कॉमा ए बिलोंग्स टू R है तो R इनवर्स में कौन होगा, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर होगा? तो R इनवर्स का ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकलता है? आप रिलेशन R के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको ये भी पता लग रहा है कि a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर विल बी पार्ट ऑफ R इनवर्स। सो thus we can say that ordered pair a comma b belonging to any arbitrary ordered pair a comma b belonging to relation R implies a comma b is also present in R inverse। तो रिलेशन R का एक जनरल मतलब हर एलिमेंट R इनवर्स में मौजूद है। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि रिलेशन R इज सबसेट ऑफ R इनवर्स। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर किसी सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो तो वो उसका सबसेट होता है, सीधी सी बात है। सिमिलरली कन्वर्सली, अगर मैं वही ऑर्डर्ड पेयर R इनवर्स में लूँ, कोई जनरल ऑर्डर्ड पेयर R इनवर्स में x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर, तो इनको इंटरचेंज करने पे फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट को y कॉमा एक्स विल बी पार्ट ऑफ द रिलेशन R। अगर y कॉमा एक्स इज पार्ट ऑफ द रिलेशन R, then x कॉमा वाई विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द रिलेशन R। Why? Because relation R is given to be as symmetric on A, isn't it? तो यहाँ दिख रहा है कि R इनवर्स में लिया गया हर एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R का भी पार्ट है। तो यहीं से एक और कंक्लूजन आ रहा है कि R इनवर्स इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रिलेशन R। So from 1 and 2, what can we conclude? That relation R is equals to R inverse, isn't it? अब ये तो वन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, अभी कन्वर्स का भी प्रूफ करना है, कन्वर्स स्टेटमेंट का भी प्रूफ करें। तो कन्वर्स स्टेटमेंट का प्रूफ करने के लिए कन्वर्स स्टेटमेंट का भी प्रूफ हमको देखना है। तो उसमें क्या गिवन है हमारे पास? तो उसमें हमारे पास गिवन होगा कि रिलेशन R इक्वल्स टू R इनवर्स, और इसको यूज़ करते हुए हमको प्रूफ करना है कि रिलेशन R इज़ सिमेट्रिक ऑन द नॉन एम्प्टी सेट A। लेट्स प्रूव दिस पार्ट ऑल्सो, क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन है पूरे स्टेटमेंट, पूरी थ्योरम पे। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। तो वन वे तो हमने पहले स्टेटमेंट का प्रूफ कर लिया पहले अभी। अब हम द अदर पार्ट, द अदर हाफ ऑल्सो, या कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ कर लें। तो लेट अस गो फॉर इट। तो लेट अगेन a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर बी पार्ट ऑफ द रिलेशन R। अगर a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है रिलेशन R में, तो b कॉमा a कहाँ मौजूद होगा? R इनवर्स में। और सिंस R इनवर्स इक्वल्स टू द रिलेशन R, तो मैं कह सकता हूँ b कॉमा a विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन रिलेशन R। तो आप देख सकते हैं कि a कॉमा b के रिस्पेक्ट में b कॉमा a, तो आप देख रहे हैं कि कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी या सिमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देयरफॉर रिलेशन R इज सिमेट्रिक ऑन द सेट A if and only if when R इक्वल्स टू R इनवर्स। तो ये कन्वर्स का भी प्रूफ हमने कर लिया। हालांकि बोर्ड में पूछेगा नहीं, बट प्रूफ मैंने इसलिए बताया ताकि आपकी एक बेसिक सेंस, बेसिक नॉलेज डेवलप हो।
कुछ एग्जांपल जो हमने जैसे इलास्ट्रेशन 4 किया था, दोबारा से इसी प्रॉपर्टी से रीचेक कर लें। इलास्ट्रेशन 4 सेट ए के एलिमेंट्स थे 1 2 3 4। रिलेशन R1 के ऑर्डर्ड पेयर्स थे 1, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 2 एंड 4, 1। अब अगर मैं इसी चेक करना है कि R1 सिमेट्रिक है कि नहीं, तो बाय द यूज़ ऑफ द प्रीवियस प्रॉपर्टी मैं क्या करूँगा, रिलेशन R1 का इन्वर्स रिलेशन डिफाइन करूँगा, फाइंड करूँगा। तो इन्वर्स रिलेशन कैसे मिलेगा, तो हर ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट को इंटरचेंज कर दीजिए। और फिर चेक करिए कि क्या R1 और R1 इन्वर्स दोनों इक्वल सेट्स हैं, उनमें ऑर्डर्ड पेयर सेम है। तो दिख रहा है कि यस, R1 इक्वल्स टू R1 इन्वर्स। तो आप यहाँ इस प्रॉपर्टी के ज़रिए भी कंक्लूड कर सकते हैं दैट R1 इज सिमेट्रिक ऑन A, इजंट इट। अब वही मैं एक और रिलेशन ले रहा हूँ 1, 3, 1, 4, 3, 1 एंड 2, 2 अगर मैं आपसे लूँ और पूछूं कि क्या सिमेट्रिक है, तो इसी R2 का इन्वर्स निकालें। इन्वर्स रिलेशन डेवलप करने पर क्या नज़र आ रहा है, 1, 4 के रिस्पेक्ट में 4, 1 आ रहा है, जो कि ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, जबकि बाकी आपके ऑर्डर पेयर सब सेम है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि रिलेशन R2 खुद के इन्वर्स के बराबर नहीं है। और खुद के इन्वर्स के बराबर नहीं है, दैट मीन्स R2 इज़ नॉट सिमेट्रिक ऑन ए। तो पिछले एग्जाम्पल की, पिछली प्रॉपर्टी की यूज़ से भी आप इजीली सिमेट्रिक चेक कर